زیادہ تر حادثات میں متاثرہ فریق کو معاوضہ نہیں ملتا۔ حکومت ایسے اقدامات کرے گی جس سے متاثرہ فریق کو معاوضہ مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ مراد علی شاہ بولے، انشورنس کلیمز کے لیے 24 گھنٹے کی ہیلپ لائن قائم کی جائے گی۔ ٹنڈو محمد خان میں دانش اسکول کے لیے 12.2 ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کی منظوری۔ بین الصوبائی اور وفاقی امور میں رابطہ کاری مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ CCI سے متعلق امور IPC ڈپارٹمنٹ کو دیے جائیں گے۔ کہا، لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور ٹرانسفر آف ٹائٹل سسٹم نافذ ہوگا۔ کابینہ نے بورڈ آف ریونیو سندھ اور IBS سکھر کی کارکردگی کو سراہا۔ سندھ کابینہ کی صوبے بھر میں اصلاحات تیز کرنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، سندھ کابینہ کا اجلاس جو ہے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صبح 10 بجے کابینہ کا ٹائم تھا، 10:30 بجے شروع ہو گیا تھا، اور اس اجلاس میں صوبائی وزراء شریک ہیں، صوبائی مشیران شریک ہیں، معاون خصوصی اور متعلقہ محکموں کے سرکاری افسران شریک ہیں۔ کابینہ نے اب تک جو فیصلے کیے ہیں، بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو سندھ موٹر وہیکل جو ایکٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے، بل کی صورت میں اب سندھ اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ اس موٹر وہیکل ایکٹ کے 2 شق ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو حادثات میں لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں اس کو تحفظ دیا گیا ہے، اور ان 2 شقوں کی ترمیم کے بعد حادثے کی صورت میں لوگوں کو معاوضہ مل سکے گا۔ یہ ایک نیا فیصلہ ہے اور نیا قانون ہوگا صوبے میں۔ جس طرح یورپی ممالک میں حادثہ کرنے کی صورت میں انشورنس کمپنیاں معاوضے کی ادائیگی کرتی ہیں، اسی طرح صوبہ سندھ میں بھی انشورنس کمپنیاں جو ہیں حادثے کی صورت میں معاوضے کی ادائیگی کریں گی۔ ایک دوسرا ایکٹ ہے سندھ ریونیو لینڈ ایکٹ، اس کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سندھ کابینہ نے سندھ ریونیو لینڈ مینجمنٹ ایکٹ کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ دونوں بل ہیں جو ترمیمی بل جو ہے سندھ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے پنجاب کی طرز پر صوبے میں دانش اسکول قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی، لہذا ٹنڈو محمد خان میں 12 ایکڑ سے زائد اراضی جو ہے سندھ کے پہلے دانش اسکول کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ کابینہ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کے 3 ٹاؤنز ہیں، لیاری ٹاؤن، چنیسر ٹاؤن اور ملیٹ ٹاؤن۔ ان ٹاؤنز میں 21 اسکول جو ہے TCF قائم کرے گی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور TCF کو یہ ٹاؤن میونسپل انتظامیہ جو ہے زمین فراہم کرے گی، جہاں پہ عمارت TCF خود بنائے گی، اور ان اسکولوں میں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ اس کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈا میں مختلف امور ہیں جن پہ کابینہ جو ہے وہ بحث کر رہی ہے۔ اب تک جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ سندھ کی جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان انشورنس کمپنیوں سے بات کرے گی، ان کے قواعد و ضوابط میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، سندھ کابینہ کو بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے ابتدائی طور پہ کہ سندھ کابینہ کے جو سابقہ فیصلے ہیں ان پر عمل کرنا فوری طور پہ لازمی ہے، خاص طور پہ 6 ماہ مکمل ہونے ہیں جو بجٹ اسکیمیں ہیں ان کے لیے خزانے سے اگر رقوم جاری نہیں ہوئی ہیں تو بجٹ اسکیموں کو فوری طور پہ مکمل کیا جائے، اور محکمہ خزانہ سندھ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان بجٹ اسکیموں کے لیے فوری طور پہ رقم جاری کی جائے۔ تو کابینہ کا اجلاس ابھی تک جاری ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کون سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سابقہ فیصلوں پر بھی عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاجز، آپ کا شکریہ۔ کاروباری میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز تیزی، 100 انڈیکس میں 908 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,74,805 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ جی کاوش، بتائیے گا۔
جی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار متحرک نظر آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بنا رہی ہے اور آج بھی مارکیٹ 1,74,000 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے. گزشتہ روز بھی مارکیٹ نے ایک ہی دن میں 2 نئے ریکارڈ قائم کیے تھے. 100 انڈیکس نے پہلے 1,73,000 اور پھر 1,74,000 کی سطح عبور کی تھی اور آج بھی مارکیٹ نے تیزی کا تسلسل دیکھا جا رہا ہے. مجموعی طور پہ بات کی جائے تو اب تک 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ارسلان موجود ہیں. ارسلان بتائیے گا، ظاہر ہے آپ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، اوور آل کیسا سینٹیمنٹ ہے سرمایہ کاروں؟ کافی بلش ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو آج کی بھی تیزی ہے وہ کل کی ہی کنٹینیوشن لگ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کل بھی 2 نئے ہائی مارکیٹ نے بریک کیے. آج صبح کھلتے ہی ساتھ ہی مارکیٹ نے اپنا ایک نیا ہائی پوسٹ کیا. تو اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے وہ کافی پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، جو سرمایہ کار ہیں ان کا انٹرسٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے. آپ انفلو دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں نئے انویسٹر کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. صرف نومبر کے مہینے میں 15,000 سے زیادہ جو ہے نا نئے انویسٹر آئے ہیں. تو یہ سارے ایسے ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ آپ کو نئے ہائی پہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ریٹرن میں دیکھیں تو 2025 میں آلموسٹ 50% کا ریٹرن اسٹاک نے جو پوسٹ کیا ہے. تو اتنا اچھا ریٹرن اور کہیں اویلیبلٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو سرمایہ کار ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کمرشل بینک نے بہت اچھے رزلٹ اناؤنس کیے. سیمنٹ سیکٹر ہے، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، آئل مارکیٹنگ کے اسٹاکس ہیں. تو اوور آل جو کمبینیشن ہے اسٹاک مارکیٹ کا بہت پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ والیوم بہت اچھے جنریٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے پین اسٹاکس ہیں اس میں بھی جو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. تو اوور آل پوزیشن کافی بہتر ہے اسٹاک مارکیٹ میں. جی ہاں، آج بھی 1,74,000 تو مارکیٹ نے پوسٹ کیا. آج نیا ہائی جو بنایا وہ 1,74,000 سے اوپر تھا. اور مارکیٹ ابھی بھی آپ اسٹل دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ بائنگ سائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا پینک سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جو سیلنگ سائڈ پہ ہے. ایئر اینڈنگ بھی آپ دیکھیں کہ کل آئی تھنک سو جو ہے نا وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اس ایئر کا. تو اوور آل کافی بہتر پوزیشن ابھی تک مارکیٹ کے اندر وٹنس کیا. ٹھیک ہے کاوش میمن، آپ کا سرمایہ کاروں کو ناظرین، سال 2025 میں ماتحت عدالتوں میں مقدمات کا ڈھیر لگا رہا اور بڑی تعداد میں ملزمان بری ہوئے، جبکہ سزائیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف رہیں. زیر التوا مقدمات میں فوجداری، دیوانی، خلا، نان نفقہ اور دیگر کیسز شامل ہیں. سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات ضلع شرقی میں ریکارڈ کیے گئے. اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے محمد جواد آصف. جی بالکل، سال 2025 اختتام پذیر ہونے والا ہے. اگر ہم کراچی سٹی کورٹ کی سال بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیں، یہاں پر 4 ضلعوں کی عدالتیں یہاں پر ہیں، جس میں جنوبی، شرقی، غربی، وسطی اور جبکہ ضلع ملیر کی عدالت ملیر میں بھی موجود ہے. ان ضلعی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی جو ہے وہ ہمیں بھرمار نظر آتی ہے، جبکہ جو بری ہونے والے ملزمان ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ سزائیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ ضلع شرقی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، جہاں یہ تعداد 34,586 ہے، جبکہ ضلع غربی کے عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 18,925 ہے. ضلع ملیر میں 22,255 مقدمات فیصلوں کے منتظر ہیں. اسی طرح ضلع وسطی میں 19,436 اور ضلع جنوبی میں 23,838 مقدمات جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، جو ابھی تک فیصلوں کے منتظر ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں کہ کتنے مقدمات کے فیصلے سنائے گئے ہیں تو وہ 1,356 ہیں، جس میں سے 177 مقدمات میں فقط سزائیں ہوئی ہیں، جبکہ 1,179 میں ملزمان بری کیے گئے ہیں. چونکہ تو پھر یہ جو شرح ہے وہ سزا کی 13%، جبکہ جو بری ہونے والے ملزمان ہیں ان کی 87% بنتی ہے اور زیر التوا مقدمات کی ہمیں تعداد بھی زیادہ نظر آتی ہے. جبکہ اگر نئے داخل ہونے والے مقدمات کی بات کریں تو سال 2025 میں 9,056 نئے مقدمات جو ہے وہ کورٹ ڈائری کا حصہ بنے ہیں. تو کراچی سٹی کورٹ کی یہ مجموعی طور پر کارکردگی تھی، جہاں پر سزائیں کم، بری ہونے والے ملزمان زیادہ ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ فیکٹرز جو ہے وہ ہمیں انوالو نظر آتے ہیں، جس میں مقلہ کی تاریخ بھی اس چیز کا باعث بنتی ہے. جی
उधर सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का IG सिंध, SHO सचल और दीगर को 8 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का IG सिंध, SHO सचल और दीगर को 8 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। उधर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 22 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने SP CEO दीगर को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बेंच के रूबरू FB एरिया ब्लॉक 22 में एक जो है वो 5 मंजिला इमारत बनाकर और वहाँ पर शादी हॉल चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि शादी हॉल के लिए कम से कम कानून के मुताबिक जो है वो कम से कम 2000 गज़ से ज़्यादा जो है वो ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन एक जो है मुख्तसर ज़मीन पर छोटे से प्लॉट पर जो है इन्होंने हाई राइज़ बिल्डिंग खड़ी की है, 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई है और 5 मंजिला बिल्डिंग में छोटे छोटे जो शादी हॉल हैं वो वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ना उन शादी हॉल का कोई जो है स्ट्रक्चर मंजूर किया गया है, ना ही वहाँ पर पार्किंग है, तो लिहाजा ये खिलाफ कानून है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इसमें हुकाम जो हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर भी मुलविस हैं, ये दरख्वास्त गुजार के वकील ने इल्ज़ाम आयद किया है। लिहाजा अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और 27 जनवरी तक तमाम फरीक़ैन से इस मुतल्लिक़ जवाब तलब कर लिया है। जी, बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर क़ायद में मौसम सर्द और खुश्क हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला शाम से कराची में दाखिल होगा। मौसम सरमा की पहली बारिश आज रात मुतवक्के है। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक जारी रह सकता है। मौसम में मजीद खुनकी बढ़ने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल शहर क़ायद के मौसम की बात करें तो रवां हफ्ते मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि इम्कान ये है कि कराची में आज मौसम सरमा की पहली बारिश हो सकती है। कराची में जो है आज शाम जो है मगरबी हवाओं का एक सिस्टम जो है वो असरअंदाज होगा, जिसके बाइस जो है आज और कल इम्कान ये है कि शहर में बारिश हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश है, बारिश कब होगी? रात में होगी, शाम में होगी, और बारिश का ये दौरानिया कब तक होगा? देखें जी, मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों, साहिली इलाकों समेत जो है बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं और ये सिलसिला जो है आज जो है वो सिंध को असरअंदाज करना शुरू करेगा बशमूल कराची। और इस बात की तवक्को है कि आज शाम गए से लेकर रात और कल अलग सुबह तक जो है कराची में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। मुझे ये बताएं, कौन से इलाकों में ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्या एक ही वक्त में हम कह सकते हैं पूरे कराची में बारिश होगी या फिर कुछ इलाकों में? देखें जी, ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है तो ये मगरब की जानिब से कराची में इसकी एंट्री होगी। तो सबसे पहले किमाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, फिर नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, फिर जो आपका सेंट्रल हसन स्क्वायर वगैरह है, उसके बाद जो है फिर ये यूनिवर्सिटी रोड। इस तरह ये तकरीबन पूरे शहर में ही हल्की फुल्की बारिश देगा। मानसून का सिस्टम ये होता है कि वो कुछ ख़ास इलाकों में बारिश करता है, जबकि जो वेस्टर्लीज होती हैं ये वाइड स्प्रेड होती हैं और ये गो के हल्की बारिश देती हैं, लेकिन ये तकरीबन पूरे कराची शहर में इससे बारिश हो जाएगी। मगरबी हवाओं का जो सिस्टम होता है वो तकरीबन कराची के तमाम हिस्सों को जो है असरअंदाज हो सकता है। कराची के तमाम इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बारिश हो सकती है, जिसके बाद जो है हवाएं भी चलेंगी और जो है खुनकी कम में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, और यहाँ आपको अपडेट करें, शाहराहों और अंदरूनी सड़कों की मुरम्मत होगी। बेशतर PC1 तैयार कर लिए गए। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने वाज़े किया, मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 453 अंदरूनी सड़कों की मुरम्मत करेगी। बल्दिया उस्मा के तहत 106 शाहराहों और सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 31 नए सिग्नल्स लगाए जाएंगे। II चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एक देरीना उनका मसला जिसको टेक ओवर किया है कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने, और मुख्तलिफ शाहराहों और अंदरूनी सड़कों की मौजूदा खराब हालत की दुरुस्तगी के लिए इक़दाम का उनकी जानिब से मरम्मत और बहाली के लिए मनसूबाबंदी का जो है प्लान सामने आया है। इस सिलसिले में इजलास जो है उनकी ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ है, जिसमें बेशतर PC1 तैयार कर लिए गए हैं और बताया गया है कि मंजूरी के बाद इन पर काम का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा।
जो PC1 रह गए थे वो 2 रोज में तैयार कर लिए जाएं। कमिश्नर कराची की जानिब से इस इजलास में हिदायत की गई है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 453 अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जो है वो टास्क दिया गया है, जबकि बल्दिया उस्मा कराची 106 अहम शाहराहों और सड़कों की मरम्मत करेंगे। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची का कहना था कि इदारे आपस में राब्ते से काम करें और यकीनी बनाएं कि डुप्लीकेशन ना हो। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 31 नए ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। आई चौंधी रोड की बात की जाए तो इसको खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए और माड़ीपुर रोड की हालत को भी बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया है। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया। उधर महकमे बल्दियात की मुलाजमीन के मसाइल हल करने की मंजूरी। सिंध सरकार ने 7 रुकनी इस्लाहाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात बतौर सरबराह शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा 7 रुकनी कमेटी में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बल्दियात के मुलाजमिन के तमाम तर बुनियादी मसाइल को हल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने जो है 7 रुकनी इस्लाहाती कमेटी भी कायम कर दी है। इस्लाहाती कमेटी का सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन बल्दियात महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन का डिप्टी सेक्रेटरी मेंबर के तौर पर होगा, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और दीगर 2 निजी मेंबरों को भी कमेटी में मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। जबकि इस्लाहाती कमेटी 7 अहम नुकात पर मुशावरत करेगी। कमेटी बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों को ऑनलाइन जारी करने पर जो हिकमत अमली बनाएगी। इस्लाहाती कमेटी रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इस्लाह लाने पर भी गौर करेगी, जबकि दोहरा मुलाजमत वफात पाने वाले महकमा बल्दियात के मुलाजमीन की औलाद को 40 कोटे के तहत भर्तियों पर गौर किया जाएगा। बल्दियाती काउंसिल के जो ओजीटी शेयर है उनमें इस्लाह लाने पर भी गौर किया जाएगा, जबकि बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन की टाइम स्केल और तलफी भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। कमेटी बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन के जो ग्रुप इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के मामला को भी करने पर भी मुशावरत करेगी, जबकि बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन के DRA अदाओं पर भी कमेटी गौर करेगी। जबकि कमेटी सिफारिशात तैयार करके सेक्रेटरी बल्दियात को पेश करेगी और सेक्रेटरी बल्दियात आत्मी मंजूरी के लिए सिफारिशात जो है चीफ सेक्रेटरी को अर्साल करेंगे और चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद इन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद नौरियो, आपका शुक्रिया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। मंजूरी होने पर फ़ी लीटर पेट्रोल 252.85 रुपये का हो जाएगा। फ़ी लीटर डीजल 8 रुपये 59 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़। फ़ी लीटर डीजल 257.06 रुपये तक होने का इम्कान है। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। मंजूरी होने पर फ़ी लीटर पेट्रोल 252.85 रुपये का हो जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज़ सामने आई है। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल जो है 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे तक गिर सकता है। और साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल जो है 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 6 पैसे का हो जाएगा। इसके साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 8 रुपये 92 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है और 1 लीटर लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों पर 1 जनवरी 2026 तक से जो है अमल दरामद होगा, जो कि अगले 15 रोज तक इस पे कीमतों पर बरकरार रहेंगी। और यहाँ पर देखा गया है कि जो माहिरीन का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी कमी होती है तो उसका असर ये होगा कि महंगाई की जो रफ्तार है उसमें कमी होगी, आवाम पे माली बोझ कम होगा, उसके मईशत पर मस्बत असरात मरतब होंगे। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। नासरीन, सीनियर नायब सदर काटी ने पैदावारी लागत को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। जाहिद हमीद बोले, बिजली के बढ़ते रेट्स और ज्यादा शरह सूद से पाकिस्तानी सन्नत कमजोर पड़ रही है। बिजली की कीमतें रीजनल ममालिक के बराबर की जाएं ताकि इंडस्ट्री की पैदावार मुतासर ना हो। हुकूमत से अपील की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से।
देखा जाए बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कंसर्न शो किए जा रहे हैं। पैदावारी लागत बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ने जो आ रही है, साथ ही गैस पे जो सेस टैक्स लगा है उससे भी भारी बोझ बढ़ रहा है। उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप जानते हैं। काटी के जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या देख रहे हैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हमारी गिर रही है, वजूहत क्या है? देखिए, मैं अभी एक डेटा देख रहा था, तो उसमें ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि कोई हमारा एक्सपोर्ट 15% डाउन हो गई है। अगर आप इंपोर्ट की बात करें, कोई 12% बढ़ गई है। और नंबर टर्म्स पे अगर आप जाएं तो टिल नवंबर कोई 18 बिलियन डॉलर का खसारा है। क्यों नहीं बढ़ी एक्सपोर्ट, क्यों नहीं बढ़ी? लेकिन आपके पास बेसिक मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास अगर आप बिजली देख लें तो हम अभी भी compete नहीं कर पा रहे बिजली हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। लेबर हमारी इतनी एफिशिएंसी नहीं है लेबर की। तो जब तक हम ये अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क की तरक्की मैं समझता हूँ नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। टेक्सटाइल जो आपका बैकबोन है, वहाँ अभी मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। वो कह रहे हैं हमारी 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो जो आपका टेक्सटाइल हब है, वहाँ अगर ये सेंटिमेंट्स और इस तरह की बातें हैं तो कैसे कंट्री ग्रो करेगी जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से इदारे हैं उनको, कि इसको बैठ के बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज करके इस पे सीरियस इसको एड्रेस करना चाहिए, रादर देन सिचुएशन और वर्स हो जाए। बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है उस तरह हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात खराब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए, तो होंगे, कैसे नहीं होंगे? जब लोग अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पाएंगे तो वो फिर इस तरह के काम तो बढ़ेंगे। तो इससे फिर मल्टीपल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको बैठ के सीरियसली सोचना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, ताकि ये और एस्केलेट ना करे। हम कोई पॉलिसी बना ले लॉन्ग टर्म, जिसमें हम, ठीक है ओवरनाइट नहीं सही हो सकते, हम भी मानते हैं बात को, लेकिन कम से कम कहीं रुकावट है और हम कोई पॉजिटिव डायरेक्शन पे तो जाना शुरू हों। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजवीज़ ये कहा है हुकूमत के फौरी तौर पर बिजली कीमतों पर जो एक बैठ कर लाया अमल तैयार किया जाए, और इंडस्ट्री को, पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को कहा है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए ताकि इंडस्ट्री चल सके। जी, अब सनती सड़कों और नकासियाब की मुरम्मत होगी। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ की मंजूरी। दीगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए अलग तरक्याती पैकेज का ऐलान होगा। सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला बोले, तरक्याती मंसूबा तैयार होते ही पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अवामी कचहरियों में मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक शिकायत मौसूल। महकमों को अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। शिकायत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। सुबह शुरू हुआ था 10:30 बजे, अब खत्म हो चुका है। काबीना ने मजीद अहम फैसले किए, खास तौर पे सनती इलाकों के जो सड़कें तबाह हैं, जो निकासी आपकी सूरत हाल है, उसके लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए के रकम की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है और कहा है कि फौरी तौर पे जो सड़कों की बहाली और निकासी आपके मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने एक और अहम फैसला किया है कि सिंध में मुख्तलिफ तलीमी इदारे जो हैं, जो लियारी और मलीर और चनेसर टाउन में 21 जो स्कूल्स हैं वो TCF के तहत जो है वो तामीर होंगे। इन स्कूलों का इंतज़ाम जो है वो TCF के हवाले होगा, जबकि ये ज़मीन जो है ये टाउन म्यूनसिपल कमेटियाँ जो हैं वो फराहम करेंगी। सिंध काबीना ने ये भी फैसला किया है कि सिंध की सनती तरक्की के लिए सिंध हुकूमत पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सूबे के दीगर शहरों के सनती स्टेटस पर भी काम किया जाएगा और तरक्याती मंसूबों का दीगर शहरों में जो मंसूबा है उसका प्लान तैयार होते ही 23 अजला में अवामी कचहरियों के इनेकाद का भी फैसला किया गया है। बताया गया कि दिसंबर में सिंध के मुख्तलिफ अजला में कचहरियाँ की गई थी जिसमें अवामी मसाइल की शिकायत सुनी गई। वज़ीर आला सिंध ने जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी हुकाम है, उसको हिदायत की है कि जो कचहरियाँ हैं उनमें जो अवामी मसाइल उठाए गए हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। और काबीना ने यह भी फैसला किया कि माह जनवरी में दोबारा सिंध के मुख्तलिफ अजला में सूबाई वज़रा और मुशीर कचहरियाँ करेंगे और अवामी मसाइल हल करेंगे। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पराठा न चाय, गैस लोड शेडिंग ने सब रुकवा दिया। कराची में गैस गायब, नाश्ता बाजार लपेट में। गैस लोड शेडिंग के बायस नाश्ते का कारोबार मुतासर। नाश्ते की दुकानों और होटल्स पर गैस बंदिश के सबब काम ठप। दुकानदारों का कहना है कि चाय, पराठे और दीगर नाश्ता तैयार करना अब मुश्किल हो गया है, जबकि गैस सिलेंडर महंगे होने की वजह से अखराजात बढ़ जाते हैं। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील से। जी बिल्कुल नाजरीन, ये देख रहे हैं आप गैस सिलेंडर, और ये एक होटल पे जो है मौजूद है इस टाइम पे, और जिस तरह के और साथ ही कस्टमर्स हैं। यहाँ पे नाश्ते की ये दुकान है जहाँ पे नाश्ता सुबह सुबह बन रहा है। यहाँ पे शहरी जो है नाश्ता करने के लिए आए हैं, अपना सुबह का दिन जो है शुरुआत करने के लिए आए हैं, और ये गैस सिलेंडर से नाश्ता जो है पकाना इनकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान कराची के ख़ास तौर के अंदर गैस की लोड शेडिंग जो है उसका सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, और वो गैस सिलेंडर यूज़ करने पर मजबूर है। नुकसानात भी इसके देखे जा रहे हैं। तो जानते हैं अपने इनसे भाई से जानते हैं, शहरी से जानते हैं कि कितनी उनको मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं, और क्या कितने पैसे खर्च हो जाते हैं सिलेंडर यूज़ करने में। जी मुझे बताइएगा इसके बारे में। ये गैस की वजह से हमें बहुत बड़ा परेशानी है। तकरीबन हम लोग 12 साल से होटल चला रहे हैं, और इसी सिलेंडर से हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना यहाँ पर नहीं आते। इसी वजह से हमारे को एक सिलेंडर जो है ना ये 45 किलो वाला 6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। इनकी वजह से काफ़ी नुकसान है। गैस तो यहाँ पर बिल्कुल है भी नहीं। जब थोड़ी बहुत होते हैं वो भी जो है ना वो सब दिन में थोड़े 3 से 4 घंटे तक होते, फिर सारे दिन बंद रहते हैं। जो है गैस अक्सर यहाँ पर नहीं होते। तो मुझे बताइए कितने आप जितने कमा लेते हैं उससे ज़्यादा आते तो इसी में खर्च हो जाते हो? अक्सर इसी में से जो है ना हमारे से खर्च हो जाता है, क्योंकि गैस महंगा है ना, 270 रुपये का एक जो है ना वो कीजिए। इसी वजह से हमारे को जो जितनी कमाई है उसी सारा गैस में चली जाती है। मुझे बताइए ऐसा भी होता है कि शहरी मना करते हैं कि नहीं जी सिलेंडर है, खतरा है हमारी जान? वो बार हमें ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को के लिए मीटर भी लगाना काफ़ी मुश्किल है। जब मीटर लगा ले उसमें गैस आते भी नहीं। ये पूरी पट्टी में जो है ना गैस नहीं होते, इसलिए पूरी बिलाल कॉलोनी में जो है ना गैस की काफ़ी मुश्किलात है। हर वक्त इसी तरह जो है ना गैस की मुश्किलात आती रहती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे दुकानदार मौजूद थे, इनका यही कहना था कि जितना ये लोग कमाते हैं उससे आधा तो सिलेंडर्स के ऊपर जो है लग जाता है, क्योंकि गैस नहीं आ रही। गैस अगर आती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि वो इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं होता, और इनकी सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कमी आ चुकी है सर्दियों के अंदर, क्योंकि शहरी आकर ये शिकायत करते हैं कि सिलेंडर्स होने से उनकी जानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उनकी यही दरख्वास्त थी इंतज़ामिया से कि साल तो कम अज़ कम सर्दियों में गैस की जो है ये लोड शेडिंग हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। नजर डालेंगे आटे की कीमतों पर। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें कम ना हो सकी। छोटी चक्कियों के लिए गंदम 108 से 112 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जिसके बायस आटा सरकारी कीमत 120 की बजाय 140 से 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान का कहना है कि आटा सरकारी कीमत पर फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। आटे की कीमतों के हवाले से बात की जाए और छोटी चक्की का आटा जो है वो ताहाल सस्ता नहीं हो सके, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है वो छोटी चक्की का आटा 140 रुपये किलो से लेके 150 रुपये किलो तक दस्तयाब है। और अगर बात करें जो छोटी चक्की का आटा है उसकी सरकारी कीमत की, तो उसकी जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये किलो जो है मुकर्रर है। इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद है छोटी चक्की के मालिक हैं, जिनसे जानते हैं क्या वजूहत है कि अब तक जो सरकारी कीमत है उस पर अमल नहीं हो रहा। 120 रुपये के बजाय 140 150 रुपये किलो तक पे आटा फरोख्त किया जा रहा है। असल में बात यह है कि हमारी तो ख्वाहिश है कि जो सरकारी कीमत हो हम उस पर अमल करें और उसके मुताबिक बेचें, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम ओपन मार्केट से गंदम 108 110 रुपये से लेके 12 रुपये तक भी हमें दस्तयाब है, हम ख़रीदते हैं। तो इस कीमत पे गंदम ख़रीद के फिर तमाम अखराजात लगा के फिर 120 रुपये में आटा बेचना जो है वो मुमकिन नहीं है। जिन उनका कहना है कि ओपन मार्केट में जो गंदम है और खुद छोटी चक्की के लिए जो गंदम होती है वो कदरे बेहतर होती है, क्योंकि साफ़ होती है, उसमें कचरा मौजूद नहीं होता है। तो ये वजह है कि उसकी कीमतें ओपन मार्केट में ज़्यादा होती हैं। 108 रुपये से लेके 112 रुपये किलो तक ये गंदम फ़रोख्त की जा रही है। और उसके बाद इनका कहना है कि तमाम अखराजात को मद्देनज़र रखते 120 रुपये पे आटा फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हुकूमत जो है वो इन कीमतों पर नज़रसानी करे और ऐसी कीमतें दें जिस पर जो है वो ना सिर्फ जो छोटी चक्की मालिकान है वो अमल कर सकें, बल्कि इसके साथ साथ आवाम को भी जो है वो सस्ता आटा मुयसर हो सके। जी, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक हो गए। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में मजीद ग्रीन बसें तैयार होकर पहुंच गई हैं। तमाम बसों को डीजल पर मुंतकिल किया गया है, जो जल्द ही शहर की सड़कों पर दिखाई देंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से।
शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में और ग्रीन बस जो कराची में कभी चलती थी वो एक बार फिर से जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में जो है वो मरम्मत इन बसों की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों जो है 3 बसें जो है रिपेयर होने के बाद बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत पहुँची थी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 2 मज़ीद बसें जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में जो है वो पहुंचा दी गई हैं, जिसके बाद इन बसों की तादाद जो है वो 5 हो गई है। तमाम तर मामले पर जो है वो तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि 3 बसों को जो एदाद शुमार सामने आए थे 2.5 करोड़ की लागत से जो है वो तैयार किया गया था, जबकि ये 2 बसें जो पहुंची हैं मरम्मत के बाद इनको भी इंतहाई महदूद कीमत में जो है वो रिपेयर जो है वो किया गया है और ख़ास तौर पर CNG पर ये बसें चलती थी, इनको डीज़ल पर कन्वर्ट किया गया है। कराची के मुख्तलिफ़ रूट्स पर ये बसें जो है वो जल्द जो है वो फ़ाल हो जाएंगी। अभी जो ग्रीन बसें खंडरात में तब्दील हो गई थी, हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस जो है तबाहाली का शिकार थी। मेयर कराची के नोटिस लेने के बाद इन बसों की मरम्मत जो है वो की जा रही है। तमाम तर मामले पर जो है वो तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान का मज़ीद कहना था कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी। उधर बढ़ती धुंध के बायस कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। अंदरूनी मुल्क जाने वाली 3 अहम ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है, जबकि 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं। इस हवाले से आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और आज भी कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं। 3 ट्रेनें आज जो है वो ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं, जबकि 2 ट्रेनें जो है वो मुअत्तल भी की गई हैं रेलवे की जानिब से। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो आज का शेड्यूल बताया जा रहा है वो उसमें जो वो 3 ट्रेनें जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। तीनों ट्रेनें जो है वो 1 से 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कराची से रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय जो है वो दोपहर 3:15 बजे यानी 1.25 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो रवाना होगी, जबकि कराची से अल्लामा सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर के बाद यानी 3:30 के बजाय 4:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से लाला मूसा वाया फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस जो वो शाम 5 के बजाय 6 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि कोयटा रवाना होने वाली बुलान मिल को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुअत्तल ही देखी जा रही होती है। रेलवे ने अपनी मालूमात के लिए जो है वो इंक्वायरी नंबर जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है 02199201115 पे जो है वो मुसाफिर कॉल करके जो है वो मालूम कर सकते हैं। सिटी 21 की स्क्रीन पे भी मुसाफिरों की आगाही के लिए जो है वो ये नंबर मुसलसल चल रहा है, ताकि चूँकि अब 3 बजे के बाद जो यहाँ पर जो शहरी आएंगे मुसाफिर आएंगे अपनी रवानगी के लिए, तो यहाँ कैंट स्टेशन पे खासा रश जो है वो देखा जाता है, क्योंकि 2 बजे के बाद जो वो ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो सामने आने